Today, with the help of a numerical problem of your NCERT book, we will try to understand the meaning of solubility and solubility product. What is solubility? Solubility means quantity of any solute which can be dissolved in unit volume of solvent. In unit volume, it could be 1 liter or 1 ml, unit volume of solvent. How is it measured? It can be measured as gram per liter or milligram per ml or moles per liter. Okay. Now, what is solubility product? The meaning of product is same as we use in mathematics. Solubility product means product of the concentration of ions dissolved in a saturated solution. It is written as KSP, solubility product. Just remember, any random product of concentration, any random product concentrations can be termed as K ionic product. But in saturated solution, KSP should be equal to KIP. If precipitation occurs, that means dissolution does not occur. Precipitation will occur if KSP will be less than KIP, and unsaturation will be there. That means more solute can be added. Unsaturation can be there if solubility product is less or greater than KIP, or KIP is less than KSP. It is same only. If you think over it, you will find that the expressions are same. जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया तो कितना सोडियम आयन है और कितना क्लोराइड आयन है, दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आयनिक प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तब कहेंगे जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, जिस सॉल्यूशन में कोई भी और एक्स्ट्रा कैटायन या एनायन डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन हमें मिले जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 हो, जैसे NaCl है, ये Na प्लस और Cl माइनस उठता है 1:1 में। अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें मिल जाए तो हम इसका सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा क्या होगा, जो NaCl का जो कंसंट्रेशन होगा वही Na का कंसंट्रेशन होगा, वही Cl माइनस का कंसंट्रेशन होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो उसका सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, सो फॉर ए बाइनरी सॉल्ट इन विच द कैटायन एंड एनायन रेशियो इज 1:1, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है, उसमें फॉर एनी सॉल्ट such that AB breaks into A plus and B minus and it is in 1:1 ratio, solubility product
is equal to because whatever concentration of AB will be there, that will be the concentration of A plus and that will be the concentration of B minus. ठीक है, तो we can write for such salt KSP is equal to solubility of each ion and square of it, or solubility is equal to square root of KSP. ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है. Now we'll see one numerical. This is question number 7.72. Question number 7.72. That means 72th question of chapter 7. The question says, what is the minimum volume of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate? What is the minimum volume of water required to dissolve 1 gram कैल्शियम सल्फेट 1:1 रेशियो में है ना, at 298 Kelvin, that means room temperature, for which KSP is given that KSP is equal to 9.1 into 10 to the power minus 6. So can we write, the question means to say कैल्शियम सल्फेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये कैल्शियम 2 प्लस आयन और सल्फेट 2 माइनस आयन 1:1 रेशियो में बनेगा. So can we say that the given data of KSP is nothing but the concentration of Ca2 plus multiplied with the concentration of sulfate 2 minus, and it is equal to 9.1 into 10 to the power minus 6. As much will be the concentration of this. If this will be X, this will be X, this will be X. If this will be Y, this will be Y, this will be Y. है ना, जो इसका रेशियो होगा वो इसका रेशियो होगा. ये 1 मोल होगा तो कैल्शियम 1 मोल होगा, सल्फेट 1 मोल होगा. ये 2 मोल होगा तो कैल्शियम 2 मोल होगा, सल्फेट 2 मोल होगा. ये 3 मोल होगा तो कैल्शियम 3 मोल होगा, सल्फेट 3 मोल होगा. तो क्या हम इसे हम X मान सकते हैं? तो KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी मान सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ आइदर का स्क्वायर is equal to 9.1 10 to the power minus 6. So it's very easy now. Solubility will be equal to 0.1 का क्या रूट निकालना है भाई? 9.1 का मतलब 9 का ही निकाल लेंगे तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 10 to the power minus 6 का हो जाएगा 10 to the power minus 3. ये हो गया सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी निकल गया तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा. किस टर्म में निकलेगा सॉल्युबिलिटी? मोल पर लीटर. मोल पर लीटर. नाउ this much mole is equal to how much of grams? You have to find out.
So how can we find out? So solubility, or we can simply write 3 into 10 to the power minus 3 moles is equal to 3 into 10 to the power minus 3 moles मल्टीप्लाइड बाय जो मोलर मास है कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास कैसे निकालेंगे? 40 कैल्शियम के लिए, सल्फर के लिए 32 और 4 इंटू 1664। दिस विल बी ग्राम पर मोल कट गया। वॉट एवर विल कम इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, it will come in terms of gram per liter and it comes out to be 0.41 gram per liter. Now very clearly 0.41 gram requires 1 liter of water. So 1 gram will require how much liter of water? 1 divided by 0.41 liter of water. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा यहां से। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 2.44 लीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से हमें क्या समझ में आएगा? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से हमें समझ में आएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, नाउ विल सी सम अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम concept. Let us see question number 7.71. Question 7.71. What is the maximum concentration of equimolar solution of ferrous sulfate and hydrogen sulfide, sodium sulfide, so that when mixed in equal volumes, no precipitation of iron sulfide takes place? Okay. What is the maximum concentration of ferrous sulfate and sodium sulfide? ये ना ferrous sulfate and sodium sulfide equimolar solution be taken to be mixed in such a way that no precipitation occurs. ठीक है, क्वेश्चन को मैंने सिंपल कर दिया है, अपने लैंग्वेज में कर लिया है। ठीक है, जो मुझे समझ में आया और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको अपने लैंग्वेज में कर लिया इजी करके। ठीक है, यू कैन रीड द क्वेश्चन नंबर 7.1। बहुत लंबा चौड़ा किया हुआ है लेकिन मेन मुद्दा यही है क्वेश्चन का। अब होता क्या है कि फेरस सल्फेट को अगर सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट कराए तो वाटर के प्रेजेंस में, एक्वस कंडीशन में, ये बन जाता है FeS का ब्लैक प्रेसिपिटेट और सोडियम सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बनेगा तो क्या होगा? FeS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे, Fe2 प्लस एंड सल्फाइड 2 माइनस कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा?
KIP अगर ये ग्रेटर हो जाए KSP से तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। लेकिन अगर KIP इज इक्वल टू KSP तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो कौन सा वैल्यू होगा वो निकालना है हमें। तो क्या कोई और वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास? यस, KSP का वैल्यू दिया हुआ है। KSP का वैल्यू कितना हुआ है? KSP का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.3 10 to the power minus 18 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इट इज गिवन। और क्या दिया हुआ है? इक्विमोलर। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं Fe2 प्लस इज इक्विमोलर, है ना। तो x ले लेते हैं, इक्विमोलर x मोल, और ये भी x मोल। इक्विमोलर है तो x ले लिया, इज इक्वल टू 6.3 10 to the power minus 18। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 10 to the power minus 18। So x will be that concentration. X will be that concentration and it will be equal to the square root of 6.3 10 to the power minus 18। माइनस 18 तो बाहर आ जाएगा, -9 बन के, और 6.3 का रूट क्या करेंगे? What will be the root for 6.3? For this we will take some logarithmic value. So we can write x is equal to 6.3 square root of 6.3 multiplied by 10 to the power minus 9। Now इसको निकालने के लिए एक लॉगरिथमिक सिस्टम है, उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि से a is equal to 6.3 to the power 1/2। तो log a लेंगे, log a will be equal to half log 6.3। अब 6.3 का log का वैल्यू निकालना होगा, तो log टेबल देखना होगा हमें। सो वी विल सी द log टेबल। ये लॉग टेबल कैसे देखते हैं? लॉग टेबल निकालते हैं और 6.3 को देखेंगे 63 तो आएगा 7993। यहाँ पे लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 0.7993। ठीक है, दिस विल बी log a। So now we divide it. 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 6 are 12 is more or less this much. So a will be equal to nt log 0.3996। इसका एंटी लॉग निकालेंगे, फिर हमें एंटी लॉग का टेबल चाहिए होगा। 0.39 0.39 under 9 is 2509
and mean difference is 6, so 3, so 2509. So it comes out to be A is equal to 2.5 10 to the power 2509. This much will come. So in this case we can write here as x is equal to 2.5 into 10 to the power minus 9 moles per liter. This is x. But one assumption we have to make, that whatever the solubility of each of this will be there. Okay, since they are equimolar, so we have to divide it into two halves. So this is actually half of the solubility. So solubility will be equal to two into 2.5 into 10 to the power minus 9, because it was binary. It was a binary salt. It was a binary salt. It contained two ions. So we multiply it by 2 and it will become 5, approximately 5 into 10 to the power minus 9 moles per liter. तो जो लॉग टेबल है, ये लॉग टेबल से हम इस प्रकार के कैलकुलेशन को हम इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे पावर वगैरह रहता है, जैसे पावर में अगर फ्रैक्शन आ जाए, पावर में अगर डेसिमल आ जाए, तो हम लॉग टेबल में बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका एक सिनॉप्सिस मैं इस वीडियो के एंड में एज ए स्क्रीनशॉट इसका जो एक चैप्टर है वो मैं दे दूंगा, सो दैट यू कैन फॉलो. ऑलराइट, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू which is like this, which is not very easy to calculate, like square root of 6.3. So how will you find out? All right, तो 9 का निकाल सकते हैं, है ना, 3 निकल जाएगा. 4 का निकाल सकते हैं, 2 निकल जाएगा. तो 6.3 कैसे निकालेंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको कैसे निकालना पड़ेगा हमें? इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि a इज इक्वल टू 6.3 टू द पावर हाफ. दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ये नीचे आ जाएगा. यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, ठीक है, log n टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ऐसा एक आइडेंटिटी है. फिर log a जो भी आएगा, इसको लॉग टेबल से इस वैल्यू को देखते हैं. लॉग टेबल इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, बुक में भी अवेलेबल होता है, साइड बुक में भी अवेलेबल होता है. और a इज इक्वल टू, फिर एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग का टेबल देखेंगे इसका, तो जो वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है. और चूंकि ये बाइनरी सॉल्ट था, तो जो भी सॉल्युबिलिटी आएगा, एक तो इक्विमोलर था, दूसरा बाइनरी सॉल्ट है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 into 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर इसका क्या आएगा? That concentration at which it will not form precipitation. All right. So at a concentration of FeS 2.5 10 to the power minus 9 plus 2.5 10 to the power minus 9, that means 2 into the power minus 9 means 5 into the power minus 9. Precipitation will just not occur. प्रेसिपिटेशन कब ऑकर करेगा? जब कंसंट्रेशन FeS का 5 into 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है. जैसे ही ये 5.9 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर से एक्सेस हो जाएगा, वैसे ही प्रेसिपिटेशन होने लगेगा. एट दिस कंसंट्रेशन प्रेसिपिटेशन होगा नहीं, ठीक है, एकदम होने के लिए तैयार रहेगा लेकिन होगा नहीं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, इट विल बी जस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक ग्रेन भी FeS एक्स्ट्रा आ जाए तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूजिंग दिस टू न्यूमेरिकल्स. We will see a few more similar kind of numericals
in our next discussions. Okay. Subsequently, the questions will become easier and easier. You also try to solve yourself once. All right. Thank you.